محترم ناظرین السلام علیکم۔ روز ریڈیو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اس حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ مقامی دراجاتی زمرے سے منتخب ہونے والے ایم ایل سیز کی حلف برداری تقریب میں ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے کی شرکت و نو منتخب ایم ایل سیز کو رول بک و آئی ڈی کارڈ حوالے کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ حادثاتی طور پر رکن پارلیمنٹ کا عہدہ حاصل کرنے والے ایم پی ڈی اروند کے سبب مرکزی حکومت کی اسکیمات سے نظام آباد محروم آرگو رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین و ضلع صدر جیون ریڈی، انہوں نے آرگو میں انٹیگریٹڈ مارکیٹ کا کیا افتتاح۔ میٹرو سٹی کی طرز پر شہر نظام آباد کو بھی ترقی دی جائے گی۔ قریب شہر میں آئی ٹی ہب کے خواب کو کیا جائے گا مکمل، رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا، انہوں نے آئی ٹی ہب کے کاموں کا لیا جائزہ۔ ریاستی وزیراعلیٰ کی سی آر کی جانب سے متعارف کردہ دلت بندھو اسکیم دلت خاندانوں کے لیے ایک نعمت، استفادہ کنندگان اس اسکیم سے اچھی طرح استفادہ حاصل کریں، رکن اسمبلی شکیل عامر۔ ماسکو میں منعقدہ بین الاقوامی ووشو مقابلوں میں شہر نظام آباد کے نوجوان شیخ امان پاشا کی شرکت، کوچ عبدالعمر نے دی مبارکباد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے دورہ کرتے ہوئے نیو کلیکٹریٹ روڈ پر زیر تعمیر آئی ٹی ہب سے متعلقہ کاموں کا لیا جائزہ۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر جدید کلیکٹریٹ کے روڈ پر زیر تعمیر آئی ٹی ہب سے متعلقہ تعمیری کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی یعنی حیدرآباد کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد کے تحت آئی ٹی ہب کی تعمیر عمل میں لاتے ہوئے مختلف منڈلوں سے متعلقہ موضوعات سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ملازمت کی مواقع فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں شہر کے میئر نیتو کرن، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ قائدین سجیت سنگھ ٹھاکر، سدھم روی چندر، ستیہ پرکاش، سرپا راجو، کارپوریٹرز و دیگر نے شرکت کی۔ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఐటీ కంపెనీలు హైదరాబాద్ నగరానికే పరిమితం కాకుండా వివిధ నగరాల్లో విస్తరించడం కోసం నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా ఐటీ హబ్ శాంక్షన్ చేసినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు। గత కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం వారే స్వయంగా విచ్చేసి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసి మొదటి ఫేజ్గా 50 కోట్ల రూపాయల నిధులతో మరి ఇక్కడ బిల్డింగ్ ప్రారంభానికి సిద్ధం కాబోతా ఉంది। పనుల పర్యవేక్షణ కోసం మేము ఇక్కడికి విచ్చేసినాం। మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే నిజామాబాద్ నగరానికి జిల్లాకి చెందినటువంటి యువతి యువకుల కోసం ఈ బిల్డింగ్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నందుకు మాకు సంతోషంగా ఉంది। నగరంలో ఒక మంచి వాతావరణంలో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్ పక్కనే ఉన్నటువంటి స్థలంలో ఐటీ హబ్ నిర్మాణ పనులు 50 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం జరిగినాయి। प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फिलफूर हल करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजाम आबाद के कलेक्ट्रेट में वाक़ प्रगति भवन में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के हमरा अवामी मसाइल के मुतालिका जुमला 56 दरख्वास्तें को हासिल करते हुए फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दामात के ओहदेदारों को हिदायत दी और बताया कि प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को ज़र-ए-इल्तिवा न रखते हुए दिलचस्पी लेकर फौरी तौर पर हल करने के लिए ओहदेदारों का अहकाम जारी किया और बाद कलेक्टर ने दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों
इदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि हमारा शहर हमारा स्कूल पर मबनी प्रोग्राम को जिले में कामयाब बनाते हुए 100% नताइज हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने के ताल्लुक से ओहदेदारान को हिदायत जारी की। शहर निजामाबाद के अहमदपुरा कॉलोनी का रहने वाला 19 साला वुशो खिलाड़ी शेख अमान पाशा बैनुल-अक़वामी सतह के मॉस्को वुशो चैंपियनशिप के लिए रवाना। इनकी कामयाबी के लिए अफराद खानदान व दोस्त अहबाब की जानिब से की जा रही दुआएं। शहर निजामाबाद के रहने वाले नौजवान वुशो खिलाड़ी शेख अमान पाशा, जिन्होंने क़ब्ल में कौमी सतह पर मुनक़्क़दा वुशो मुकाबलों में बेहतरीन मुज़ाहरा पेश करते हुए कामयाबी हासिल की और रियासत का नाम खेल की दुनिया में और भी ऊंचा किया। इसी तरह इनके इस तरह के मुज़ाहरे को देखते हुए इनको हिंदुस्तानी टीम में मुंतखब करते हुए मॉस्को वुशो स्टार्स चैंपियनशिप 2022 जो रूसिया में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेगा और शेख अमान पाशा का इन मुकाबलों के लिए मुंतखब होने पर इनके कोच अब्दुल उमर को मुबारकबाद पेश की और इनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सारा फाउंडेशन की जानिब से एक और माजूर को किया गया मुफ्त बस और ट्रेन पास हवाले व इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इनके जज्बे की गई सताइश। सारा फाउंडेशन निजामाबाद जो मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम दे रही है और इस तंजीम की बानी साबिर हुसैन की क़ियादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत इंसानियत की खिदमात की जा रही हैं और कई माजरीन को इनकी जानिब से मुफ्त बस पास और ट्रेन पास की फराहमी अमल में लाई जा चुकी है। और इसी तर्ज पर आज इनकी जानिब से शहर के इलाके नामदेववाड़ा के रहने वाले शिवा कुमार जो 90% माजूर है, इनको बस व ट्रेन पास की फराहमी अमल में लाई गई। इस तकरीब में MPJ जिले कोऑर्डिनेटर शेख हुसैन, धर्माराम सरपंच सुमन, डॉक्टर आसिम व तंजीम की मोतमिद नवीन कुमार व दीगर ने शिरकत करते हुए इस मासूम बच्चे व इनके वालिदैन से मुलाकात करते हुए इन्हें हिम्मत दी और इनके जज्बे की सताइश की। ఈ డిజబుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని చేరదీసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాను అని చెప్పి వారి షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పినప్పటి నుండి వారికి నేను ఫ్యాన్ అయిపోయినా, మీరు ఎప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా నేను దాంట్లో పాల్పంచుకుంటాను సార్, మమ్మల్ని కూడా ఇన్వైట్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. అదే ప్రకారంగా ఈరోజు సార్కి కుదిరింది, ఈరోజు పిలవడం జరిగింది. దానికి మీకు సారా ఫౌండేషన్కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. మీరు చేస్తున్నటువంటి మంచి పనికి మేము కూడా ఎల్లవేళలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ మీరంటే ఉంటామని మీకు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ సహారా ఫౌండేషన్ ఇదే విధంగా కొనసాగి ఇంకా ఈ డిజేబుల్ పర్సన్కు మంచి సేవలు చేయాలని చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. భారతదేశం ప్రపంచంలో పేరు గల దేశం. మన దేశంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన దేశానికి గర్వకారణం. అయితే సమాజంలో చాలామంది సేవా కార్యక్రమం చేస్తున్నారు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా పనిచేస్తున్నాయి. చాలా తక్కువ మంది నిస్వార్థంగా సమాజంలో సేవలు అందిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే నిజామాబాద్ పట్టణంలో కూడా సారా ఫౌండేషన్ అనే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ, ఈ సాబిర్ హుస్సేన్ అనే అతని ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ టీము చాలా మంచి పని చేయజేస్తుంది. మానసికంగా శారీరకంగా ఎవరైతే వికలాంగులు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం పాసులు, అదేవిధంగా రైలు పాసులు ఉచితంగా తీసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా రకరకాలైన సేవలు కూడా వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఏదైతే పెండమిక్ వచ్చిందో, ఏదైతే కరోనా వచ్చిందో అప్పట్లో కూడా చర్చ్, మందిర్ అనే విభేదాలు లేకుండా కలిసికట్టుగా అక్కడ సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా శుభోదయం, చాలా మంచి విషయం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇక ముందు కూడా వీళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పి నేను అల్లాహ్తో जिले निजामाबाद MP DRV जिले में हल्दी बोर्ड के क़याम के मुतालिक हल्दी किसानों से वादा करके फरामोश करने पर जिले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। जिले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए शहर में जदीद तामीर करदा इंटीग्रेटेड वेज एंड नॉन वेज मार्केट का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर तरकारी मार्केट एसोसिएशन से वाबस्ता मेंबरान ने MLA जीवन रेड्डी को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर जिले TRS सदर आर्मूर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब दूरंदेशी के तहत रियासत तेलंगाना में तमाम
طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات کے تحت فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور اس طرح سے ریاست تلنگانہ میں رویہ عمل میں لائے جانے والی منفرد اسکیمات کا کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ نظام آباد ایم پی ڈی آر ون ہلدی بورڈ کے قیام کے متعلق ہلدی کسانوں کو وعدہ کر کے فراموش کرنے پر برہمی کا اظہار کیا. అంబేర్ బజార్లో వచ్చి చూడండి, తెలంగాణ వస్తే వెజిటేబుల్ మార్కెట్ కోసం 2,70,00,000 రూపాయలు వచ్చినాయని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే నాన్ వెజ్ మార్కెట్ కు 2 ఎకరాల జాగలో 4.5 కోట్ల రూపాయలతో ఇలా పనులు ప్రారంభించుకున్నామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. 27 కోట్ల రూపాయలతో 100 పడకల ఆసుపత్రిని మంజూరు చేసుకొని దాదాపు 30,000 పైచిలకు ప్రతి నెల 500 మంది అక్క చెల్లెలకు ఈ రోజుతోనే 10 లక్షల కేసీఆర్ కిట్లు తెలంగాణలో దాటిపోయినాయి. ఒక్క ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో 30,000 మందికి ఉచితంగా డెలివరీ చేయించి మా అక్క చెల్లెల ఇళ్లలో ఒక్కొక్కరికి 50,000 రూపాయలు లాభం చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా. मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस सीनियर टीआरएस कॉर्पोरेटर के अफराद खानदान के साथ 23 फरवरी को अल जजीरा एयरलाइंस के जरिए उम्रे को रवाना की. मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस सीनियर कॉर्पोरेटर टीआरएस पार्टी अपने अहल खाना के साथ सऊदी अरब 23 फरवरी को सुबह 4 बजे अल जजीरा एयरलाइंस के जरिए रवाना होंगे और वो मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उम्रा सादत हासिल करेंगे और वो मदीना मुनव्वरा भी जियारत के लिए जाएंगे और वो अपने वतन हिंदुस्तान 6 मार्च को वापस होंगे. मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि वो उम्रे की सादत के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर रियासत तेलंगाना और जिले निजामाबाद के अलावा मुल्क में अमन व अमान व खुशहाल के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे. इस ज़िम्मन में मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की रिहाइश का दारू गली पहुंचकर दोस्त अहबाब और रिश्तेदार गुलपोशी व तहनियत पेश करते हुए मुबारकबाद दे रहे हैं कि मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस 23 फरवरी को अपनी रिहाइश का दारू गली से शाम 7 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट हैदराबाद के लिए रवाना होंगे. वहां से वो अल जजीरा एयरलाइंस के जरिए सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे. निजामाबाद मसलक में एक और प्लेटफॉर्म पानी की टंकी और बैतुल खला की तामीर के लिए अजीम कुरैशी के MHO से नुमाइंदगी. एम अजीम कुरैशी इंचार्ज कॉन्ट्रैक्ट मसलक ने आज इंचार्ज MHO निजामाबाद से साजिद अली सैनिटरी इंस्पेक्टर मिस्टर महिपाल से नुमाइंदगी करते हुए मसलक में एक और प्लेटफॉर्म पानी की टंकी और बैतुल खला की तामीर CC रोड की तकमील अमल में लाने का मुतालबा किया. MHO निजामाबाद ने आज बल्दी ओहदेदारों के हमरा स्लाटर हाउस का दौरा किया और मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की. एम अजीम कुरैशी ने बताया कि कसीर तादाद में बड़े जानवर मसलक में ज़ुबा किए जा रहे हैं. प्लेटफॉर्म की कमी के बायस इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा सिर्फ 2 पानी की टंकियां हैं जो नाकाफी साबित हो रही हैं. MHO से अजीम कुरैशी ने मुतालबा किया कि मजीद एक पानी की टंकी तामीर अमल में लाते हुए पानी के खलत के मसले को दूर किया जाएगा. अजीम कुरैशी ने MHO को बताया कि कुरैश बिरादरी के ताजिर अल सुबह मसलक पर पहुंच जाते हैं. मसलक में 2 बैतुल खला तामीर किए गए हैं जो नाकाबिल इस्तेमाल है. अजीम कुरैशी ने MHO से मुतालबा किया कि मौजूदा बैतुल खलाओं के अलावा मजीद बैतुल खला की तामीर अमल में लाई जाए. अजीम कुरैशी ने बल्दी ओहदेदारों को बताया कि निजामाबाद मसलक के लिए 7 एकड़ अराजी 22 साल कबल मुख्तस की गई, लेकिन बास लैंड ग्रैबर्स अराजी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. MHO और बल्दी ओहदेदारों ने अजीम कुरैशी को तयक़ुन दिया कि तमाम मसाइल के जल्द जल्द एक्सवी अमल में लाई जाएगी. दलितों की जिंदगी को मियारी बनाने में दलित बंधु स्कीम मौन व मददगार. बोधन मंडल परिषद दफ्तर में मुनक़दा दलित बंधु दरख्वास्त गुजारों के इजलास से रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर का खिताब. बोधन मंडल परिषद दफ्तर में मुनक़दा दलित बंधु दरख्वास्त गुजारों के इजलास से रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम की वजह से मालिक बन चुके हैं. दलित अफराद की जिंदगी को रोशन करने, इन्हें माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाने के मकसद से दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख की फराहमी की जा रही है. दलित बंधु स्कीम की कामयाब अमलावरी ने हुकूमत पर दलितों के एतमाद को फरोग देने का इजहार किया. मुकामी दराजाती कोटे के तहत MLC के तौर पर मुंतखब होने वाले रुकन कानून साज कौंसिल के अरकान को रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद. मुकामी दराजाती कोटे के तहत MLC के तौर पर मुंतखब होने वाले पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी भानु प्रसाद डंडे विठल को प्रोटियम चेयरमैन सैयद अमीनुल हसन जाफरी के हाथों हल्फ दिलवाया गया, जिसमें रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए कानून साज कौंसिल के अरकान को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इन्हें कानून साज कौंसिल के रूल्स बुक व ID कार्ड की फराहमी अमल में लाई गई. इस प्रोग्राम में विद्रा जगदीश रेड्डी, कमलाकर, कुपला ईश्वर, मोहम्मद अली, इंदिरा करण रेड्डी, ईरापेली दियाकर राव, गवर्नमेंट वेब D विनय भास्कर, बालका सुमन, रायतु बंधु
समिति चेयरमैन पी राजेश्वर रेड्डी, MLS, MPs व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा हल्के के मोरताड़ मंडल में MPP शिवलिंगु श्रीनिवास और रायतु मंडल समन्वय समिति सदर प्रसाद देवन्ना व मुकामी सरपंच ने मंडल तहसीलदार व MPDO की मौजूदगी में रायतु वेदिका भवन में दलित बंधु स्कीम के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई। बाद बालकुंडा हल्के के मोरताड़ मंडल में MPP शिवलिंगु श्रीनिवास, रायतु मंडल समन्वय समिति सदर प्रसाद देवन्ना और मंडल TRS पार्टी सदर के इलैया व दोनपाल सरपंच ने हल्के के मंडल तहसीलदार व MPDO की मौजूदगी में रायतु वेदिका भवन में दलित बंधु स्कीम के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई गई, जिसमें DCO सीमाचलम तहसीलदार श्रीधर ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दलितों की माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए इनकी पसंद का इंतखाब करने के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारफ और नाफिज करें और कारोबार और दीगर के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी देने की बात बताते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत फायदा उठाने वालों को एक अलहदा बैंक खाता खोलने की जरूरत पर तवज्जो दिलाते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत दलित भाइयों को 10 लाख रुपए नकद रकम फराहम करने के मुतालिक इजहार किया। रियासती वजीर बराए सनत आंध्र प्रदेश मेका पार्टी गौतम रेड्डी के अचानक फौत होने पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए इनकी कमी को कोई भी पूर्ण नहीं करने का इजहार किया। रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वजीर बराए सनत आंध्र प्रदेश मेकापति गौतम रेड्डी के अचानक फौत होने पर अफसोस का इजहार करते हुए इनकी कमी को कोई भी पूर्ण नहीं करने की बात बताते हुए इनके अफराद खानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। निक्कर जरीन क्वार्टर फाइनल में दाखिल। हिंदुस्तानी बॉक्सरों को यहां ईस्टर एंड जाम मेमोरियल में सख्त ड्रॉ का सामना करना पड़ा है, लेकिन निक्कर जरीन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज सीधे क्वार्टर फाइनल से करेंगी। सिमत और अंजलि तोशीर अपने पहले राउंड के मैचों में सख्त हरफों का सामना करेंगे। 2019 के टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली जरीन को 52 किलोग्राम जिम्रे के पहले राउंड में बाई मिला। जरीन के अलावा नंदनी 81+ किलोग्राम एक और हिंदुस्तानी बॉक्सर है जो आखिरी 8 के मुकाबले से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। अंजलि को रूस की सादत डेल्गाटोवा से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, जो 66 किलोग्राम जिम्रे में दोबारा की आलमी चैंपियनशिप जीत चुकी है। मर्दों में आकाश कुमार को 67 किलोग्राम के जिम्रे में पहले राउंड में बाई मिल गई, जबकि समेत 75 किलोग्राम आलमी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले रूस के रामबुलात बेजामोव के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। हिंदुस्तान की 17 रुकनी टीम में 7 मर्द और 10 खवातीन बॉक्सर्स को शामिल किया गया है। ये पहला गोल्डन बेल्ट सीरीज टूर्नामेंट है और बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग फेडरेशन के वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट का टेस्ट मुकाबला भी। वरुण सिंह 60 किलोग्राम रूस के आर्तो सुबह खानकोलोव के खिलाफ हिंदुस्तानी चैलेंज का आगाज करेंगे। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जिले कामारेड्डी रामारेड्डी मंडल में खानदानी झगड़े के बायस खुदकुशी करने वाले वालिदैन की वजह से एक मासूम 6 साला लड़का हुआ यतीम। जिले कामारेड्डी रामारेड्डी मंडल के मुकाम पर दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। मौजे से ताल्लुक रखने वाला नामलक शंकर व इनकी अहलिया सुजाता खानदानी झगड़े के बायस घर में फांसी लेकर खुदकुशी करने के मुतालिक पुलिस मुलाजमिन ने इजहार करते हुए मौके वारदात की जांच पड़ताल करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। नोटरी जायदादों के लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत का वादा वफा न हुआ। हुकूमत के ऐलान पर कोई पेशरफ नहीं। जायदाद मालिकिन में तशवीश की लहर।
तेलंगाना में नोटरी जायदादों की रजिस्ट्री के लिए हुकूमत से मोहलत की फराहमी के तयक़ुनात के बावजूद अब तक वाज़ेह अहकाम जारी नहीं किए गए, जिसके सबब नोटरी जायदादों के मालिकिन में तशवीश पैदा होने लगी है। हुकूमत ने नोटरी जायदादों की मुंतकली पर पाबंदी को खत्म नहीं किया, जिसकी वजह से नोटरी जायदादों की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुराने शहर के गुंजान आबादियों में जहाँ जायदादों की खरीदो फरोख्त नोटरी पर की गई और बरसों से लोग इनमें मुकीम है, इन जायदादों को भी रजिस्टर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से परेशान है। पुराने शहर में बेशतर मोहल्ला जात में नोटरी जायदादों की खरीदो फरोख्त मामूल की बात थी, लेकिन हुकूमत से गैर मजाज और गैर कानूनी तामीरात के अलावा नोटरी जायदादों के रजिस्ट्रेशन और मुंतकली पर पाबंदी ने शहरियों को मसाइल में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में नोटरी जायदादों पर तवील मुद्दत के कब्जे को भी मिल्कियत के लिए कबूल न करने से हालात मज़ीद अबतर होने का खदशा है, क्योंकि हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी और नोटरी जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए मौका फराहम करने की ख्वाहिश के बावजूद फैसला न किए जाने पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। नोटरी जायदादों की मिल्कियत साबित न कर पाने और नोटरी दस्तावेजात पर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से असेसमेंट न किए जाने और तामीरी इजाजत न मिलने से भी तशवीश है और कहा जा रहा है कि GHMC की जानिब से कहा जा रहा है जो जायदाद नोटरी पर खरीदी गई इसका कोई असेसमेंट नहीं किया जाएगा और महकमे स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन की जानिब से इसकी रजिस्ट्री न किए जाने के फैसले के सबब वो गरीब शहरी जो नोटरी जायदादों को फरोख्त करना चाहते इन्हें माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो ना जायदाद फरोख्त कर सकते हैं और ना ही नोटरी दस्तावेजात पर बैंक से कर्ज हासिल कर सकते हैं। सियासी जमातों और अवामी नुमाइंदों की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा तवज्जो मजबूल कराई जा चुकी है, लेकिन हुकूमत से कोई कार्रवाई या सहूलत फराहम करने के मुतालिक गौर किए जाने की कोई इत्तलात नहीं है। फिजाई सनत पर पाबंदियों की बर्खास्तगी पर गौर, जारी माह के इख्तिताम तक मुकम्मल परवाजों की बहाली का इम्कान। मुल्क भर में हुकूमत की जानिब से फिजाई सनत पर तहदीदात को मुकम्मल खत्म करने इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। कहा जा रहा है कि आइंदा माह के आखिर से शेड्यूल परवाज़ों का आगाज़ कर दिया जाएगा और तहदीदात आयद नहीं रहेगी। माह कबल कोरोना फिजाई सफ़र को मामूल पर लाने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़राए ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से शेड्यूल परवाज़ों को रोकते हुए एयर बबल स्कीम के तहत परवाज़ों को बंद करने पर गौर किया जा रहा है, बतदरीज शेड्यूल परवाज़ों को बहाल किया जा सके। मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के बाद आयद फिजाई पाबंदियों को बतदरीज बर्खास्त करके मरकजी हुकूमत ने एयर बबल स्कीम का आगाज किया था और कौमी परवाजों के अलावा मखसूस परवाजों को मशरूत इजाजत थी, लेकिन अब दुनिया भर में हालात तेजी से मामूल पर आने लगे हैं तो फिजाई सफर करने वालों को राहत की फराहमी के सिलसिले में इक़दामात को भी तेज कर दिया गया है ताकि हालात मामूल पर आ जाए। तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त मौसमी गर्मा का आगाज, दिन और रात के दर्जे हरारत में अचानक इजाफा। मानसून की मामूल से ज्यादा बारिश और ठिठुरा देने वाली सर्दी के बाद अब शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। महकमे मौसमियात की जानिब से 1 मार्च को मौसमी गर्मा का आगाज तस्वर किया जाता है, ताहम रियासत में अभी से दर्जे हरारत में इजाफा होने लगा है, जिससे पता चलता है कि गर्मा का क़ब्ल अज़ वक्त आगाज हो चुका है। अजीम तरीन दर्जे हरारत जो गुज़िश्ता हफ्ते तक 28 डिग्री के आसपास था, अचानक ही बढ़कर 34.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के डाटा के मुताबिक हैदराबाद के बेशतर मुकामात पर दिन के दर्जे हरारत में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात ने मौसम की तब्दीली को हवा के रुख में बदलाव की वजह करार दिया है। इसके नतीजे में शहर में रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ है और ये 19 डिग्री तक पहुँच गया है। हालांकि अभी कोई बाज़ाब्ता रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन शहर में जारी साल मौसमी गर्मा शदीद होने का इम्कान है। आइंदा चंद दिन के लिए अपनी पेश क़यासी में महकमे मौसमियात ने कहा कि हैदराबाद में मौसम खुश्क रहेगा और औसत अजीम तरीन दर्जे हरारत 34 और औसत अक़ल तरीन दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। शहर के अलावा अजला में भी दर्जे हरारत में इजाफा होने लगा है और इतवार को खम्मम और निर्मल में दर्जे हरारत 37.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मलक गदवाल और नगर कर्नूल में भी आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत में मजीद 2 डिग्री इजाफे का इम्कान है। SSC इम्तिहानात में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी।
ریاست تلنگانہ میں SSC امتحانات کے انعقاد کے سلسلے میں ٹائم ٹیبل کی جائے کے بعد محکمہ تعلیم کی جانب سے امتحانات کے دوران اختیار کی جانے والی تدابیر کے سلسلے میں بھی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ SSC امتحانات کے دوران موبائل فون پر مکمل امتحان ہوگا اور ممتحن کے علاوہ نگران کو بھی موبائل فون کے استعمال کی اجازت حاصل نہیں ہوگی۔ موبائل فون کے ذریعے پرچہ سوالات کے افشا کے خدشات کے پیش نظر محکمہ تعلیم و بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ SSC امتحانی مراکز کو موبائل فری زون میں تبدیل کیا جائے گا اور سپرنٹینڈنٹ امتحانات کو بھی فون کے استعمال کی اجازت حاصل نہیں رہے گی۔ ریاست تلنگانہ میں منعقد ہونے والے SSC امتحانات میں طلباء کو فراہم کی جانے والی رعایت اور صرف 50% سوالات کو حل کرنے پر مکمل نشانات کی فراہمی کے فیصلے کے بعد کیا جانے والا یہ اہم فیصلہ ہے۔ سابق میں واٹس ایپ کے ذریعے امتحانی پرچے کے افشا کی کوشش کے واقع اور گزشتہ دنوں امتحانی پرچے افشا کے پیش نظر محکمے نے عہدیداروں سے مشاورت کے بعد اس مرتبہ امتحان کو مزید بہتر انداز میں منعقد کرنے کے لیے اس بات کا فیصلہ کیا ہے اور ممتحن و نگران کے علاوہ سپرنٹینڈنٹ امتحانات کو بھی فون رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی وہ بیسک فون کا استعمال کر سکیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست میں شفاف امتحانات منعقد کروانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ہنگامی حالات میں فون کے استعمال کے لیے سپرنٹینڈنٹ کو امتحانی مراکز پر متعین پولیس عملے کے فون کے استعمال کی اجازت حاصل رہے گی اور پولیس عملہ و عہدیداروں کو لازمی ہوگا کہ وہ ان فون کالز کی تفصیلات کا ریکارڈ موجود رکھے۔ شہر حیدرآباد کے علاوہ سکندرآباد اور اضلاع میں بھی ان احکام پر سختی سے عمل آوری کو ممکن بنایا جائے گا اور ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ تعلیم اور بورڈ آف سیکنڈری کی جانب سے تیار کردہ منصوبہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ امتحانات کے عملے میں شامل کسی بھی عہدیدار کو اس بات کی اجازت حاصل نہیں رہے گی کہ وہ فون کا استعمال کرے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم بورڈ آف سیکنڈری کے علاوہ امتحانات منعقد کرنے والے ایجنسی کی جانب سے جلد احکامات کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہنگامی حالات میں سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے پولیس عہدیدار کی فون کے استعمال کی صورت میں جس نمبر کو فون کیا گیا اس نمبر کی تمام دیگر تفصیلات بالخصوص کتنی دیر بات کی گئی اور کس وجہ سے بات کی گئی وہ سب جمع رکھنی پڑے گی۔ کاماریڈی MLA کیمپ دفتر کا گورنمنٹ ویب گمپا گوردھن کے ہاتھوں افتتاح۔ ضلع کاماریڈی میں گورنمنٹ ویب گمپا گوردھن نے MLA کیمپ دفتر کا افتتاح عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ برسر اقتدار پر آنے کے بعد CM KCR تمام کسانوں کو ریت بندھو ریت بیمہ و مفت برقی کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے وہ دیگر منفرد اسکیمات کے تحت فیض یاب کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ضلع کاماریڈی کلیکٹر جتیش پاٹل TRS پارٹی ضلع صدر مجیب الدین، ایڈیشنل کلیکٹر چندر موہن، میونسپل چیئرپرسن جہانوی، وائس چیئرپرسن H پریا، ضلع لائبریری چیئرمین راجیشور، عوامی نمائندے، TRS پارٹی سے وابستہ قائدین و دیگر نے شرکت کی۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ مقامی دراجاتی زمرے سے منتخب ہونے والے MLCs کی حلف برداری تقریب میں ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے کی شرکت و نو منتخب MLCs کو رول بک و ID کارڈ حوالے کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ حادثاتی طور پر رکن پارلیمنٹ کا عہدہ حاصل کرنے والے MP ڈی اروند کے سبب مرکزی حکومت کی اسکیمات سے نظام آباد محروم آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلع صدر جیون ریڈی، انہوں نے آرمور میں انٹیگریٹڈ مارکیٹ کا کیا افتتاح۔ میٹرو سٹی کی طرز پر شہر نظام آباد کو بھی ترقی دی جائے گی۔ قریب شہر میں IT ہب کے خواب کو کیا جائے گا مکمل، رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا، انہوں نے IT ہب کے کاموں کا لیا جائزہ۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے متعارف کردہ دلت بندھو اسکیم دلت خاندانوں کے لیے ایک نعمت، استفادہ کنندگان اس اسکیم سے اچھی طرح استفادہ حاصل کریں، رکن اسمبلی شکیل عامر۔ ماسکو میں منعقدہ بین الاقوامی ووشو مقابلوں میں شہر نظام آباد کے نوجوان شیخ امان پاشا کی شرکت، کوچ عبدالعمر نے دی مبارکباد۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔